Good evening, all. On behalf of NISM, I would like to take this opportunity to welcome you all for today's webinar on behavioral aspects of finance. Myself, Ami Sayed, working with NISM. Along with me, today we have a renowned speaker from the industry, Ms. Shweta Kama. He's a director of an NGO named as Spirit to Help Welfare Organization and director of a company, Corporate Education and Corporation. Before we begin, let me allow to give a quick introduction about our speaker. Shweta Kama holds a 20 plus year of training experience in BFSI industry. She is associated as a trainer with SEBI, NISM, NSC, BSC, CDSL, NCDX, PFRD, and various AMCs, various brokerage houses. She has done equity data analytics from IIM Kashipur, MicroMaster from IIM Bangalore. She is also a CFP and done social psychology from Wesleyan University. So before we start, let me give the quick area which we are going to touch upon today. So today we're going to explore how psychology influences financial decision making and why understanding our behavioral tendencies is crucial for effective financial planning as well. So we often assume that financial decisions are purely rational, based on number, calculations, and logical analysis. However, in reality, emotions, biases, and cognitive shortcuts significantly impact how we save, invest, and spend money. This field of study, known as behavioral finances, helps us to understand why individuals make irrational choices and how these behaviors can lead to financial mistakes. By the end of this webinar, we'll gain valuable insights into managing your finances more wisely by recognizing and controlling the behavioral patterns that influence your money decisions. So, just two, three housekeeping announcements we're going to make. The certificate of participation will be provided to the attendees post webinar within 3-4 days. And we'll be taking all the questions at the end of the webinar, requesting all the participants to put their queries in a Q&A board. Our speaker will be happy to answer all your questions. So without taking any further time, I would like to hand over the webinar to our speaker. Over to you, ma'am. Thank you, Amir. Let me share the screen first. Good evening, all of you. Happy Basant Panchami. आने वाली है अभी बसंत पंचमी. I'll be speaking in Hindi and I'll be speaking in English both. So have some patience. I'll be explaining everything in both the languages because the link is circulated across India. So we have a mixed batch where some people just understand Hindi. कुछ को सिर्फ English आता है, हिंदी आता है, कुछ को सिर्फ English आता है. Fine. When it comes to behavioral biases, so let's start. Rather than me giving you anything, the very first thing, brain. Brain is a very expensive organ. ये हमारा पूरा metabolic budget का 20% कैच करता है, यूज कर लेता है. And though it weight 3 pound, and अगर आप इसको साइंस में पढ़ें तो साइंस में पढ़ाया जाता है that first we had a reptilian brain, then we had a mammal brain, then we got cortex. Fine. तो ये 3 पार्ट है, but I'm not teaching you biology. Fine. पेशेंस रखिए. सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं. ब्रेन हैव 2 सिस्टम. फर्स्ट इज फास्ट कॉन्शियस, unconscious, sorry, and automatic. Fine. So if I throw this phone over to you, so जो भी सामने होगा that person will catch. This is the system 1. When I'll ask you what is your name, you know your name, you answer. Somebody asks me what's my name, I'll immediately answer Shweta. That's system 1. Fine. But if somebody asks what is 23 raised to the power 48, what is 12 multiplied by 43, then my system 2 trigger, that is deliberate, conscious, but take a lot of effort. Most of the time, people think that when they take investment decisions, they use their system 2. तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों को यही लगता है कि वो अपने सिस्टम 2 से डिसीजन लेते हैं. नो, मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी आर यूजिंग आवर सिस्टम 1. फाइन. We are using our system 1, not system 2. And this system 1 is autopilot mode. How it is autopilot mode and how it works, we'll start doing it. So again, there were 3 layers of brain. That is an ancient brain, that's a reptilian brain, from which we developed a mammal brain, which we create about the emotional part, and the cortex, that is impulse and control. But still we are overpowered with our reptilian brain. आज भी हम अपने reptilian brain से ज़्यादा काम करते हैं. Close your eyes and just recollect yourself that during the day, how many things you do
without even thinking. आप आंखें बंद करके ये सोचिए कि आप कितनी चीजें बिना उसको सोचे हुए कि करना है कर लेते हैं. That's basically that's on autopilot mode, and reptilian mind works on survival. We also work on survival. Amir, if you're there, can you read this thing for me? Amir or Neha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Amir, can you read this for me? You will read this first, and then you will read this, and then you will read this last, बट based on आमिर, जब the. आप नॉर्मली पढ़ते हो तो आप ऊपर से पढ़ते हो ना. Yes, ma'am. Why you have start reading in the middle? Because that was big. Highlighted. Yes. So this is something which is automated in our mind, that we generally when we start reading from the starting of the chapter. शुरू से पढ़ते हैं. मगर जब कुछ बड़ा ब्रॉड लिखा होता है तो हमारा ध्यान उस तरफ चला जाता है. जैसे आमिर ने पढ़ा, ये मैं खुद भी पढ़ सकती थी, मगर जैसे आमिर ने पढ़ा, I guess we are not able to see the screen. Somebody is saying that they are not able to see the screen. Can I reshare, Amir? Ma'am, we are able to see your screen. Okay, fine. Then they need to recheck it. Fine. Yeah. So that's a basic thing, that it's the way our mind is programmed. Fine. So generally, while you read a book, if something is highlighted, something is written in the box, that is the way even people attract our attention for promoting their product, promoting their strategies and investments. As we are talking about behavioral biases, let me start with the story. There's a picture in front of you. आप सब लोगों के सामने एक पिक्चर है जो एक जापानीज घर की है, और वहां सब बैठ के चाय पी रहे हैं. जापान में चाय पीना एक रिचुअल की तरह है. इवन द पॉट्स आर डिफरेंट एंड दे डोंट जस्ट हैव चाय. चाय नहीं लेते वो, एक चाय को एक रिचुअल की तरह लेते हैं. तो जब जापान में नेस्कैफे गया, मैं जापान में नेस्कैफे गया, तो नेस्कैफे ने सबको कॉफी टेस्ट कराया and everybody praised it good. And then क्या हुआ, जब उन्होंने वहां स्टोर्स खोले, कैफे स्टोर्स खोले, कॉफी जैसे हमारे यहाँ कैफे कॉफी डे है वैसे खोला, वो खाली थे. nobody was coming. तो रैल्फ करके एक मार्केटर है जो ऑटिस्टिक चाइल्ड के साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे, वो मार्केटिंग के बहुत बड़े एक्सपर्ट है. जब वो आए तो उन्होंने कहा कि एज देयर चाइल्डहुड मेमोरी डोंट हैव कॉफी, so by default they start having tea as a first priority. So for the people who are not able to understand in Hindi, when Nescafe went to Japan and start selling the coffee, initially people liked it, but later on nobody come into their cafe houses. When a marketer come and analyze, he said their childhood memory don't have a coffee. Fine, so their childhood memory is tea, and that is more overpowering. And actually, to make Japanese people to have a taste of tea, नेस्कैफे सोल्ड कैंडीज. नेस्कैफे ने ना कॉफी कैंडीज बेची, और उसके बाद आज जापान में नेस्कैफे एक बड़ा शेयर होल्ड करता है. This is the psychological aspect, that our childhood memory remain with us forever, even when it comes to our taste, even when it comes to our investments. Fine. So the things which we are familiar, we are easy to get it. So there are so many behaviors, we call it as heuristic behavior. Heuristic behavior is basically shortcuts. डोंट गेट इनटू ड्रैगन्स. डरिएगा मत कि क्या क्या बड़े बड़े शब्द मैम बोल रही हैं. ह्यूरिस्टिक इज मेंटल शॉर्टकट्स, जो हमारे प्री डिफाइंड मेंटल शॉर्टकट्स है, विच हेल्प पीपल टू मेक क्विक डिसीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. फाइन. सो लॉट मेनी थिंग्स, जैसे हम अपनी मॉम के किचन से अडॉप्ट करते हैं, मेरी मम्मा ने किचन में ये किया तो मैं भी ये कर लेती हूँ, दिस इज अ शॉर्टकट. फाइन. फाइन. एंड देन lot many people adapt the certain things from their father, that okay, my father used to do this thing, so this is the shortcut. And so do we. We get lot many shortcuts framed in our brain, wired in our brain, and we process our life like that only. We don't inherit the genetics of our parents only, their features. No, we inherit their behavior also. So heuristic is, with the lack of time, we already feel we lack of time, fine, but we are not lack of time, we are always in hurry. मेरा हमेशा कहना है, you mind your mind, you can mind anything in your life. So heuristic behavior
may we talk about, so there is even the role of personality also. It is not just your behavior, the what kind of personality you are. When I talk about personality, whether you're extrovert, whether you're a agreeable, agree to everything, whether you're a introvert, whether you're open with the expression, what kind of person you are, along with your mental shortcut. Then feelings, what sort of feelings, how you express your feelings and emotions, what mood you are in, that also impact your financial decision. What is your mood, what is your ecological factor? So I'll narrate a story to you. Over here we don't have financial counselings. बाहर में फाइनेंशियल काउंसलिंग्स होती हैं, इवन फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो लोगों को गाइड आउट करते हैं. सो देयर वाज वन पर्सन, फाइनेंशियल काउंसलर लाइक मी, एंड लेट्स से आई हैव गिवन समथिंग टू आमिर, कि नॉट टू आमिर, टू अ ब्लैक वुमन इन यूएस, कि यू हैव टू फॉलो दिस, यू डोंट हैव टू शॉप मच, you have to follow this strict budget. One evening that black woman came to my house while we were having a session, and no, मेरे साथ नहीं था, किसी और के साथ था. I'm just telling you कि मैं थी, to make you understand. She came to my house and she said, Shweta, I've shopped this. And I said, this is out of your budget. Let's say उसका नाम Emily है. This is out of your budget, Emily. Why you bought it? She narrated that when I entered into the store, मैं सिर्फ देखने गई थी, मगर वहां स्टोर की मैनेजर जो एक वाइट लेडी थी, उसने मुझे ऐसे देखा कि क्या खरीदेगी. She can't afford it. She's another one who just want to do the window shopping. And the disgust I felt on her face about me, I want to prove her wrong, and that's the reason I bought that coat. Now just imagine, in her past, being a black woman, she must have gone through the racist comments. Her parents also must have suffered from that. And just to prove someone, she have done an impulsive decision. Now, you also think many of the time when it comes to investing, or even when it comes to spending money, we do the impulsive decision just to prove ourselves. Okay, I know everything, or I want to prove myself. Fine. So don't do that. You don't have to prove it to anyone. You have to prove it to your own self. There are good lot of heuristic behaviors. We'll be talking about one by one. हम सब देखते हैं, मगर हमने उनको नाम नहीं दिया है. मैं आपको नाम दे दूंगी. Over here you see two jeeps. The difference in two jeeps is their headlight. The one jeep have a round headlight and another jeep have a square headlight. When Wrangler actually introduced these square headlights jeep, they were failed to sell it. Again, the person who gave Nescafe the advice to sell toffees in the Japan, he said, turn them back into red, round, sorry. तो लोगों ने पूछा, भाई राउंड क्यों करना है? तो दे सेड, दिस वाज द स्टोरी ऑफ यूएस. यूएस में जीप को आजादी से कोरिलेट करते हैं लोग. सो दे वर नेटिव अमेरिकन, यूज्ड टू राइड हॉर्सेस, देन दे यूज्ड टू राइड बाय जीप्स. सो दे आर नॉट एबल टू कोरिलेट विद दिस जीप बिकॉज of the square headlights, as human eyes are round and so do none of the animal have a eyes of square. So just imagine, मेरे जैसा इंसान जिसको गाड़ी सिर्फ एक ट्रैवल करने का माध्यम लगती है, कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, वही एक पैशनेट ड्राइवर है, उसके लिए हेडलाइट का स्क्वायर या राउंड होना भी इम्पैक्ट करता है. दिस इज अगेन अ बिहेवियरल एस्पेक्ट and a predefined mindset on certain things. So there are predefined mindsets and we want that thing like that only. तो मेरी मम्मा पराठे के अंदर घी डाल के बनाती थी, आप तो ऊपर से लगाते हो. Again a predefined mindset. So the lesson is, for certain things and for so many things we have our predefined mindset, and if we can't connect, we don't buy. Break that predefined mindset. I'll take an example of a predefined mindset is people end up buying insurance. I'm not saying term insurance, I'm talking about insurance products. Reason, there's a predefined mindset that my mother, my father, my grandfather used to buy it, but the scenarios were very different when our parents used to buy those insurance. Fine. So there are so many predefined mindset when it comes to investment, even buying a gold. Fine. So every woman who's working, or even to the homemaker, they have a predefined mindset to buy gold because my mother, my grandmother, my great grandmother used to do the same. Fine.
But now we just don't have gold. We have so many other investment options in our hand. Fine. We have so many other options in our hand. Now, we'll start with the heuristic types of heuristic biases. First is familiarity bias. As I talk about familiarity bias, the things which we are familiar of. So buying an insurance, buying a FD, buying gold, these are familiarity bias. Fine, where our mind don't have to work. Fine. And there is a predefined thing. There's a social proof. My parents have accumulated wealth like that. So in that very case, that is familiarity bias. And in that familiarity bias, we end up buying wrong thing for our right financial goal. So my financial goal is right. I want to retire, but my retirement is 20 years away, and I am investing in a fixed income instrument which is not able to beat inflation. But what I'm thinking is that my parents have invested in this instrument and they were able to achieve, my grandparents have invested in that instrument and they were able to achieve retirement. But please understand, the economic conditions were different. Fine. Economic conditions were different. Fine. In that very case, तो फेमिलियरिटी बायस में क्या होता है, जिन चीजों पे आप फेमिलियर होते हैं उन्हीं चीजों पे चले जाते हैं. जैसे गोइंग टू द सेम रेस्टोरेंट, अगर आप एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, यू स्टिक टू फ्यू डिशेस, यू डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट. व्हेन आई टॉक अबाउट गोइंग टू द सेम शॉपिंग सेंटर, you are going with the family, you are going to the same shopping center, then buying the same detergent. I have gone through this. मेरी मॉम एक्स डिटर्जेंट लेती थी, मैं भी लेती थी. It took me long to shift to something else, despite there were healthier, better options, healthier, not safe options, good other quality option. It is something like having comfort over to the quality. I'm not considering quality, I'm considering my mind comfort. I'm considering the mindset which I am familiar bias, which I'm getting from my parents. I am having a limited exploration and it's a shortcut to me. It's a shortcut to me. आप सब भी यही करते होंगे. Fine. Now, next. So navigating familiarity bias. अब इन biases से करना, overcome कैसे करना है? Very first thing, if you are having your copy and pen with all of you, write down that what all you have buy till now because of this familiarity bias. प्रोडक्ट लाइक एफडी. देखिए, वन मोर थिंग, कोई भी प्रोडक्ट बुरा नहीं होता. आपकी जरूरत का है या नहीं है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. एफडी भी बुरी नहीं होती. इंश्योरेंस आपका रिस्क कवर होता है. गोल्ड भी आपके फोलियो में होना चाहिए, बट कितना होना चाहिए, दैट रियली मेक्स द डिफरेंस. सो बिकॉज ऑफ द फेमिलियरिटी बायस, अ पर्सन माइट हैव फोलियो ऑफ 50% in gold. Because of the familiarity bias, a person young at the age of 25 to 30 of bracket still sitting with 70% of the FD amount in his folio. So write down your familiarity bias mistakes. Because you are familiar to this product, आपने क्या क्या किया और इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? स्टार्ट लर्निंग, seek professional help. Yes, that is very much required. Diversify your folio. चैलेंज योर assumptions. नहीं भाई, गोल्ड तो बुरे समय में काम आता है. फाइन, गोल्ड बुरे समय में काम जरूर आता है, मगर गोल्ड वो आखिरी चीज होती है जो बुरे समय में बिकता है, क्योंकि गोल्ड इज्जत की बात होती है. अरे उसे देखा है, घर का गहना बेच रहा है, लोग ऐसे कहते हैं. तो ये जो नोशन है बुरे समय में काम आता है, ये उस औरत ने कहा जिसके पति की अनटाइमली डेथ हो गई थी और वो जॉइंट फैमिली में अपने बच्चों के साथ रहती थी. तो उस पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को कहा कि बुरे समय में काम आएगा. ना अगली पीढ़ी ने पूछा, ना पिछली ने बताया कि बुरा समय था क्या. सो चैलेंज योर assumptions, do your research, and if you're unable to do it, have basic understanding of finance. Hire a professional who can navigate your portfolio to achieve your financial success. That's very important. So basically किसी भी bias को overcome करने का तरीका है learning. Fine. लर्निंग एक तरीका है. फाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू लर्न. अर्न के आगे एक एल लगाइए. तो सेबी की सारथी ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, विच इज इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. ईटी वेल्थ न्यूज़पेपर आता है मंडे टू मंडे, उसे आप रेफर कर सकते हैं टू गेन अप योर फाइनेंशियल नॉलेज. डोंट हैप्पीजर्डली इन्वेस्ट. फाइन. एक दोहा है जो मैंने एक बुक में पढ़ा था, मूड मुड़ाए हरी मिले, सब कोई ले मुड़ाए.
बार बार के मूड से भेड़ ना बैकुंठ जाए। तो इस दोहे का अर्थ ये है कि अगर बाल कटवाने से भगवान मिलते तो भेड़ को सबसे पहले मिलते, क्योंकि भेड़ के बाल तो बहुत ज्यादा कटते हैं, सबसे ज्यादा कटते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सब करते हैं वो आप करें, ये सही नहीं है। फाइन। बड़ी अच्छी सी सेइंग है कि व्हेन पीपल आर ग्रीडी बी फेयरफुल एंड व्हेन पीपल आर फेयरफुल बी ग्रीडी। जब लोग लालची हो तो आप डरे रह जाएं, और जब लोग डरे हुए हो तब आप लालची हो जाएं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं कहूँ, कोविड। कोविड के दौरान जब सब कुछ गिरा तो सब डरे हुए बैठे थे। कोविड से पहले भी बात करूं तो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उसके समय भी उस समय भी जिसने ये समझा कि भारत हमारा ओपन इकोनॉमी होने वाला है, और हर्षद मेहता स्कैम के बाद सेबी आ गई और लोग फिर भी डरे हुए बैठे थे, और वहीं पे एस इन्वेस्टर्स, राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दमानी साहब, देयर आर मेनी एस इन्वेस्टर्स इन आवर कंट्री, कईयों के नाम नहीं आते हैं। उन्होंने ये समझा कि भारत तरक्की करेगा, उन्होंने निवेश किया। हर्ड मेंटालिटी, भीड़ के साथ, भीड़ के ही हिस्से में बन जाना। और अगर भीड़ जहां जा रही हो उसके साथ नहीं जाओ तो फिर ऐसा लगता है मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। इसमें बड़ा एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ था, लिफ्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था आमिर। लिफ्ट एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया गया, आप लिफ्ट एक्सपेरिमेंट टाइप करेंगे ना गूगल पे तो आपको यूट्यूब की एक वीडियो नजर आएगी। जनरली हम जब लिफ्ट में खड़े होते हैं तो हमारा फेस लिफ्ट के दरवाजे की तरफ ही होता है। तो इन्होंने अपने आर्टिस्ट को खड़ा करा, 5-6 लोग लिफ्ट में खड़े हैं। एक आया, लेट्स से आमिर इज अ पर्सन हु इज नॉट अवेयर ऑफ यहाँ कुछ चल रहा है। आमिर आया तो उसने देखा सब पीठ करके खड़े हुए। नाउ ही इज कंफ्यूज, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट आमिर नो कि भाई ये गलत है, सबको इसी तरफ मुंह करके खड़ा होना चाहिए। बट फिर एक जना आया जो उन्हीं की क्रू में से था, वो भी पीठ करके खड़ा हो गया, और फिर आमिर भी पीठ करके खड़ा हो गया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो गलत था। तो कई बार क्या होता है, जो चीजें गलत होती है हम उसे कर लेते हैं, हम उसे कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमने सही किया। जैसे अभी अगर मैं बात करूं हर्ड मेंटालिटी की, कि हर्ड मेंटालिटी में अगर मैं बात करूं तो ये अभी मुंबई में जो स्कैम हुआ, टॉरस ज्वेलरी का स्कैम हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि 6% वीकली पे आउट है। तो ये हर्ड मेंटालिटी, अरे सबको मिल रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है तो मुझे कर लेना चाहिए। इन दैट वेरी केस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना है, आपको पहले होमवर्क करना है। पर कम वक्त हम होमवर्क ही तो नहीं कर पाते हैं। स्कूल में भी होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता था। देखो जिंदगी हमेशा होमवर्क देती है, करना जरूरी होता है। जैसे ये कार्टून देखो, आई डोंट नो वेयर वी आर गोइंग बट फ्रॉम द लुक ऑफ दिस क्राउड इट्स गॉट टू बी गुड। हम इसी तरह भीड़ का हिस्सा चले जाते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो। जैसे भीड़, इसी भीड़ के हिस्से से एक और चीज आती है, वो आती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जो हर्ड मेंटालिटी के को पुश करते हैं आजकल इन्फ्लुएंसर्स, जिन पे एक्चुअली अभी सेबी शिकंजा कस रही है। तो एक फिन इन्फ्लुएंसर ने एक क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया, और आपको लगा भाई मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा, और फिर वो प्लेटफॉर्म बंद हो गया। वो बंदा आज भी वीडियो बनाता है, आप उसकी वीडियो आज भी लाइक करते हैं। आप हर्ड मेंटालिटी में अपने पैसे गंवा चुके हैं, और वो उसको प्रमोट करके अपनी प्रमोशन से पैसे कमा चुका है। हर्ड मेंटालिटी से आप डाइवर्सिफिकेशन कम कर पाते हैं। एवरीबडी इज, जब अभी अभी का हर्ड मेंटालिटी क्या है, currently it is 2020 से अब तक we have seen greener market, fine, so everybody is in equity. Equity is not bad, but if I need money after 1 year then it is bad. If I need money after 5 year, equity is good, fine. इग्नोरिंग पर्सनल गोल, अरे सब कर रहे हैं मैं भी करता हूँ, कीप असाइड। टॉरस वाले ना 6% का रिटर्न दे रहे हैं, वीकली पे आउट दे रहे हैं, क्या करना है गोल का, अभी 6% हर महीना हर हफ्ते लेंगे। 6% हर हफ्ते लेंगे तो 6 x 4 24%, 24 x 12, अरे दिस इज वेरी गुड। कीप असाइड द पर्सनल गोल, सारा पैसा इसके अंदर। लेट टू द गेम, you always fear that late to the game, and in that very case what happened late to the game, कि मुझे एक्चुअली मेरे फाइनेंशियल गोल में जो कंपाउंडिंग चाहिए थी उसके लिए मैं लेट हो गई हूँ। आई हैव लिमिटेड पोटेंशियल। so generally going ahead with herd mentality, we adapt the ideology of the large groups, we accept their judgment and the masses। और आजकल इसका एक और तरीका है, अगर कोई शेयर पिच करना है लोगों को, तो अब उस चीज पे और ज्यादा लाइनें आ गई हैं। कल परसों भी गाइडलाइंस आए हैं फिर इन्फ्लुएंसर पे, तो डाल दो भाई इंस्टा पे, यूट्यूब पे, वो लोग बोलेंगे ये लोग खरीदेंगे। डन एज एन अटेम्प्ट टू फिट इन conformity of the social norm।
अच्छा, ये भी फिट इन होने का तरीका है, अरे सब कर रहे हैं, नाउ देयर इज अ पीयर प्रेशर। अब जैसे स्कूल बच्चे हैं, कॉलेज में हैं, तूने किया क्या, तो उसको लगता है यार मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, दैट फाइन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भीड़ जहां जा रही है, देखिए जरूर कि भीड़ कहाँ जा रही है, मगर वो भीड़ में आपको जाना है या नहीं जाना है, दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। और सिद्धार्थ, ये जो सारे बाइसेस हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, फाइन। सो पास्ट एक्सपीरियंस पे भी आगे बात करेंगे। सारथी ऐप संजीव आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हर्ड मेंटालिटी को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, डू योर होमवर्क, होमवर्क करना जरूरी है। मेंटेन द कॉन्ट्रेरियन अप्रोच। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच क्या होती है कि हवा के रुख से दूसरी की तरफ भी देखना। स्टे इन्फॉर्म्ड बट नॉट इन्फ्लुएंस्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। I am informed by a platform of YouTube or some influencer that this thing is there. Okay, I'm informed now. Now I'll do my homework whether I should buy this product or not. मेरी बड़ी अच्छी दिल की लाइन है, मैं हर ट्रेनिंग सेशन पे बोलती हूँ, लोभ और लाभ में ओ की मात्रा का अंतर होता है, और अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीड एंड गेन। इफ यू वांट टू सीक गेन, यू हैव टू डू योर होमवर्क। सो ओवरकमिंग द हर्ड मेंटालिटी, यू हैव टू चेक कि ये सब आ कहाँ से रही है इंफॉर्मेशन। पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन आपको हर जगह मिलेगी। Fine. I'm speaking in English and Hindi both, Joel, and set your goals. Okay. Again, when it comes to overcoming the biases, you have to set your goals. Just a small thing, short term, medium term, long term, and write it down. अपने गोल्स को लिखिए, फाइनेंशियल गोल्स हो, लाइफ के कोई भी गोल्स हो, ड्रॉ रोड मैप। फाइन, राइट योर गोल्स विद पेन एंड द स्ट्रेटजी विद पेंसिल। ठीक है ना, तो अपने गोल्स को पेन से लिखिए, ठीक है, पेन मिटता नहीं है, और अपनी स्ट्रैटेजीज को पेंसिल से लिखिए, क्योंकि हर साल अपने फाइनेंशियल गोल्स को आपको रिव्यू करने के लिए इरेजर लेकर रिविजिट करना पड़ेगा। बी कॉन्ट्रेरियन, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम योर सक्सेस। सिर्फ अपनी गलतियों से भी नहीं सीखना है, अपने सक्सेस से भी सीखना है कि व्हाट आई हैव डन बेटर देन अदर, दैट आई वाज एबल टू अचीव दिस गोल, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो लाइफ का कोई भी गोल हो। सो दैट इज अ वे ऑफ हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी का एग्जांपल था, ऋतिक रोशन का पिक्चर आया था, I'm forgetting the name, if somebody can type in the chat box, in which he played the army man. मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। So in that picture, he went into army because his friend was going. That was herd mentality. Yes, Lakshya, thank you, thank you. Lakshya, and then he found his Lakshya in that. Fine. So वो वापस भी आ जाता है, पहले वो इंजीनियर बनना चाहता है। तो हर्ड मेंटालिटी का एस्पेक्ट आप सबसे ज्यादा बच्चों में भी देखते हैं, while they are in 11th and 12th. फैशन ट्रेंड इज दी हर्ड मेंटालिटी। फाइन, ये सब हर्ड मेंटालिटी का है, और ये इन्वेस्टमेंट में भी आता है, हर्ड मेंटालिटी। फाइन, so that ways do your homework। और इसी हर्ड मेंटालिटी से एक फियर आता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको यूज करके कंपनीज अच्छे से चीजें बेचती हैं। 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, एजुकेशन के प्रोडक्ट प्रोग्राम जो यूट्यूबर्स बेचते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन विच आर प्रोवाइडेड बाय द सोर्सेज लाइक NIS, बट ऑन यूट्यूब इफ यू फाइंड द एनी person selling the course, एक सीट बची है, 2 सीट बची है, that is FOMO। FOMO is basically a game of telling you that if you'll not buy it, you'll miss it। Like I'll talk about in 2021, US का एक स्टॉक है GameStop। If you will see, अगर आप उसका चार्ट देखोगे ना, there was a sudden spurt in 2021 in the price of GameSpot, and it was because of the online forum of Reddit, social media and everything, and then there was a fall। अब क्या हुआ, सब बात कर रहे हैं किसकी, गेम स्टॉप की। आई एम नॉट रिकमेंडिंग गेम स्टॉप, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ US स्टॉक। सो एवरीबडी was buying that, fine, and nobody was thinking that why I'm buying or why I should buy, why I should not buy। I am just buying that people is buying and I don't want to miss this opportunity। And if you really want to see the FOMO, जसपाल भट्टी साहब का एक बड़ा अच्छा सटायर था पुराने समय में स्टॉक मार्केट को लेकर,
प्रेम प्रकाश गोलगप्पे वाला पीपी वाटर बॉल्स, उसमें दिखाते हैं कि सब पीपी वाटर बॉल्स खरीद रहे हैं, ठीक है। सो उसमें पीपी वाटर बॉल्स इस प्रेम प्रकाश गोलगप्पे वाले का आईपीओ आया, फाइन। हाँ, क्रिएशन, नाउ आई फील फोमो इज, Joel, when it comes to anything which is not regularized in our country, you should stay away of it. That's very important to understand. So प्रेम प्रकाश गोलगप्पे वाले में फिर वो कहता है अरे रेड लॉयन की कोलैबोरेशन, यू वॉच दैट, यूल अंडरस्टैंड फोमो। एवरीबडी, अरे एक जना कहता है अरे यार मैं तो मिस कर गया, प्रकाश ने कहा था 10 का मिल रहा था, अभी तो 20 का मिल रहा है। कहते 20 में भी ले ले, सस्ता महंगा नहीं है, 20 का कोई 100 में भी लेता है। दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फोमो। व्हाट हैपन इज इन फोमो इन इन्वेस्टिंग इज when you're investing in stock market and sometime everybody is buying, वो शेयर एक्चुअली महंगा हो चुका होता है अपनी फंडामेंटल वैल्यू से, बट क्योंकि सब खरीद रहे होते हैं वी वांट टू बाय दैट। दैट्स इन क्लासिकल एग्जाम्पल कि आपको फोमो पे बाइट नहीं करना है, आपको फोमो से हटना है, ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज, ऑल हु आर सिटिंग ओवर हियर, this stock market was there even when we were not born, and this stock market will remain after us also. इस मार्केट में बहुत से बुल रन्स आए हैं, बहुत से बेयर रन्स आए हैं। दोज हु डोंट नो बुल रन मार्केट अप जाता है, बेयर रन मार्केट डाउन जाता है। अभी जो स्पेसिफिकली यहाँ जो इन्वेस्टर्स बैठे जो 2020 के बाद से आए, भाई आपने अभी मार्केट सिर्फ ग्रीन देखा है। देयर वॉज अ टाइम फ्रेम इन द मार्केट जहां मार्केट 4000, निफ्टी 4 से 4000 पे ही रहा 10 सालों तक, वो उसी के बीच में घूम रहा था, रिटर्न्स थे कम थे, फाइन। So don't rush, because in FOMO you end up buying things at expensive price. आप चीजों को महंगा खरीद लोगे और फिर महंगा खरीद लोगे और फिर वो वहां से नीचे गिरेगी ना, then you will regret, अरे यार थोड़ा रुक जाता, फाइन, थोड़ा रुक जाता। और एक और चीज, मार्केट में ना भाव, चाहे आप स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्ट करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। What are the factors that can trigger FOMO in the stock market? Social media's hype, peer pressure, success story। अरे मैंने वो लिया था इतना बढ़ गया, मार्केट में अच्छी अच्छी ग्रीन ग्रीन मूवमेंट चल रही है, ट्रेंड अच्छा चल रहा है, एक्सपर्ट्स भी अच्छा। हमारे टीवी पे भी बड़ा अच्छा होता है, जब मार्केट गिर रही होती है ना, वो ऐसे बैठ के बोलते हैं जैसे सारी मार्केट गिर जाएगी, और जब मार्केट ग्रीन होती है ना, दे आर जंपिंग आउट ऑफ द चेयर, बिकॉज अब वो 24 घंटे न्यूज देंगे तो क्या देंगे, दे हैव टू एक्ट ऑल्सो। एंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर, डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल मीडिया हाइप। I'm not questioning on the knowledge capability of the people who are there as a fin influencer. Fine. I'm a financial educator. I'm not an influencer. I'm not here to influence you. I'm here to educate you. And education gives you a tool कि आप उस चीज को एनालाइज कर कर सीख और समझ सकते हैं। किसी से सुनिए, समझिए और फिर अपना होमवर्क कीजिए, फाइन। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। आजकल तो कुछ भी बोला जाता है। अभी एक मैंने सुना, वो भाई साहब बोलते बच्चों को स्कूल भी मत भेजिए, बच्चों की स्कूल फीस का सिप लगाइए, बाय द टाइम योर किड इज टर्निंग 18 दैट पर्सन विल हैव सम सीआर ऑफ द अमाउंट। बट एजुकेशन, मतलब ही वाज ट्राइंग टू से दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि अब किसी को क्या समझना है वो उसके ऊपर होता है। फिर पता है इंसानी फितरत है, हम उसमें से क्या समझना चाहते हैं हम वही समझ लेते हैं। किसी ने ये समझ लिया अरे यार क्या करना है बच्चे को स्कूल भेज के, करोड़पति तो हम ऐसे ही बचा देंगे, वो बैठा देगा स्कूल घर पे। नो, maybe he was saying in this context that 20 years SIP can generate a good return, but I don't know how the way he was saying. So it's very important that don't get influenced by the social media hype. Please remember, even now the guidelines are there, they can't promote the product, but prior to this guidelines, if they were promoting the product of any brokerage house or any of the houses or any of the things, they were getting their cuts. They were as good as a person who's selling and getting the commission out of it, जैसे एक marketer आके कर रहा है। What are danger of FOMO on investing in trading or portfolio? Increase volatility and market risk. बहुत सारे लोग आते हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, वी एंड अप बाइंग रॉन्ग थिंग्स, आवर फोकस फ्रॉम लॉन्ग टर्म इज शॉर्ट टर्म, छोटे समय का फोकस आ जाता है हमारा। हाँ, पीपी वाटरफॉल वाज अ वेरी हिलेरियस वन, फाइन।
नाउ इग्नोरिंग द रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क है तो इश्क है, ये डायलॉग तो बड़ा अच्छा है, पर समझिए जिससे हम इश्क करते हैं। So I'll take an example of your, I don't know what age group is sitting. So I'll take, everybody is 45, I'm 45. Fine. So while I was young, and if I want to actually get into a propose a boy, or if a boy wants to propose me, he'll do the homework, I'll do my homework. जैसे लड़के के हिसाब से कहते हैं, वो लड़का होमवर्क करेगा, उस लड़की की फ्रेंड जोन में आएगा, उसकी लाइक डिसलाइक को ऑब्जर्व करेगा, and we do the homework for our beloved na, and then we end up getting into friend zone and then we propose. ठीक है, in short we are doing our homework. यही करते हैं हम सब, आप सब ने भी किया है, जाके सीधा तो प्रपोज करते नहीं है। तो डायलॉग ये है, रिस्क है तो इश्क है, मगर इश्क करने के लिए रिस्क को समझना पड़ेगा। तो उस रिस्क को समझने के लिए रिस्क मैनेजमेंट नहीं भूलना। इफ यू आर अ ट्रेडर, अगर आप यहाँ ट्रेडर कम्युनिटी वाला बैठा है कोई, तो ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, प्लीज ऑल ऑफ यू, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम है। आप सीखना चाहते हैं तो भाई आप उसके बारे में पढ़ाई करें, किसी ब्रोकरेज हाउस, ट्रेडिंग हाउस में काम करें, क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। बार बार रस्सी को भी अगर पत्थर पे घिसा जाए तो वो कमजोर रस्सी भी पत्थर पे अपना निशान छोड़ देती है। तो उसी तरह अगर हम रेगुलर एक ही चीज को प्रैक्टिस करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन। सो ब्रूसली का या पता नहीं किसी का कोट था कि आई डोंट फेयर द पर्सन हु प्रैक्टिस फॉर मेनी आवर, बट आई फेयर द पर्सन हु प्रैक्टिस द सेम पंच फॉर मेनी आवर्स। कि वो एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस कर रहा है। एक कराटे किड पिक्चर आई थी, उसमें वो दिखाते हैं जैकी चैन उस बच्चे को कराटे सिखाता, तो उसको कई दिन तक सिर्फ कोट उतारना चढ़ाना कर रहा था। वन डे दैट बॉय इज फ्रस्ट्रेटेड, व्हाट द हेल यू आर डूइंग, मैं ये करने आया हूँ। एंड देन ही रियलाइज कि उस एक्सरसाइज से उसके हाथ मजबूत हो गए हैं। तो ट्रेडिंग के लिए सीखना जरूरी है, टेक्निकल सीखिए, फंडामेंटल सीखिए, कोर्सेज अवेलेबल हैं, चेकआउट कीजिए, ऑथेंटिकेटेड सोर्स से पढ़िए। फाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोकरेज हाउसेज में जाकर जॉब कीजिए, ये फुल टाइम है। आप किराने की दुकान पे बैठ के ट्रेड नहीं कर सकते हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप बैठकर ट्रेड नहीं कर सकते हो। और वो जो कर भी रहे हैं वो फिर पढ़ते हैं, लिखते हैं, और हर किसी का एक तरीका अलग अलग होता है। फाइन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू योर होमवर्क। नाउ रीसेंसी बायस, ये जो भाई साहब है ये इनको कह रहे हैं योर इवैल्यूएशन इज बेस्ड ऑन नेक्स्ट 30 सेकेंड। ये शायद सालों से यहाँ काम कर रहा है, और अभी इसको कह रहे हैं भाई 30 सेकंड में जो तू करेगा उसके बेसिस पे तेरा प्रमोशन या डिमोशन। दैट्स रीसेंसी बायस। कमिंग बैक अगेन, मैंने रिस्क है तो इश्क में एग्जांपल दिया था कि हम होमवर्क करते हैं और हम किसी को प्रपोज करते हैं। अब उसको प्रपोज भी कर लिया और वो गर्लफ्रेंड भी बन गई। अब किसी दिन वो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो दिल टूट गया, या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, दिल टूट गया। अब उस केस में वो जो दिल टूटा व्यक्ति है वो क्या कहेगा? अगर लड़की है तो कहेगी सारे लड़के बुरे होते हैं, और लड़का है तो कहेगा ये सारी लड़कियां खराब होती है। डिस्पाइट उस लड़के की मदर बहुत लविंग है, उसके पास एक लविंग सिस्टर है, उसके बाद बहुत सारी लविंग फीमेल फ्रेंड्स हैं, एंड सो डू विद द फीमेल ऑल्सो। बट क्योंकि रिसेंट इवेंट में उसको किसी ने हर्ट किया, तो वी हैव अ प्री कंसीव नोशन कि भाई अब तो सभी बुरे हैं। और अक्सर यही होता है कि हम अपने रिसेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है अपने सारे डिसीजंस लेते हैं। जैसे अभी आप सब जो इन्वेस्टर, जो नया नया ग्रीन ग्रीन मार्केट में आया ना, उनके सारे जो डिसीजंस हैं, सारे जो डिसीजंस हैं वो यही है कि भाई मार्केट 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 मार्केट। उन्होंने अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं देखा है। ठीक है, और अक्सर ट्रेडर क्या करते हैं कि भाई जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो रिसेंट में है उसी के आपस में करते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में एक और एस्पेक्ट है, जो यहाँ कई ट्रेडर बैठे हैं, डोंट हैव रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग में क्या होता है, अब मैंने यहाँ से लॉस किया है तो मैं यहीं से कमाऊंगा, वैसा कुछ भी नहीं होता है। फाइन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट रीसेंसी बायस, रीसेंसी बायस में रीसेंट इवेंट के बेसिस पे हम अपना पास्ट एक्सपीरियंस भूलकर और सिर्फ अपना पास वाला चश्मा, इसको ऐसे समझिए कि मैंने सिर्फ अपना पास वाला चश्मा लगा रखा है और मैं मेरा दूर के चश्मे से जो दूर से पीछे से लेकर आ रही हूँ एक्सपीरियंस, उसको मैंने कोई काउंट नहीं किया। दैट इज बेसिकली रीसेंसी बायस। इट लीड टू पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। आप
गलत डिसीजंस ले लोगे। जैसे अभी अरे किसी ने ना 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, उसके इतने रिटर्न आ गए म्यूचुअल फंड में, अभी मैं भी कर लेता हूँ। अरे भाई, आप कर लोगे, पहली चीज बहुत क्लियरली सब एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल गोल आपका 5 साल से छोटा है उसे इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना। अगर आपने अभी लगाया और 2 साल तक मार्केट एक रेंज में ही रह गई तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉन्गर द विजन, लॉन्गर द गोल, लॉन्गर द विजन, शॉर्टर द विजन, शॉर्टर द गोल। मतलब अगर शॉर्ट टर्म है तो उस हिसाब से और लॉन्ग टर्म है तो उस हिसाब से। आप रीसेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपना पूरा एस्पेक्ट नहीं दे सकते हो। फाइन। Now, how recency bias affect your investment? You overreact to the short term markets. अरे ये मार्केट में बुल रन है, फिर फोमो भी आ जाता है क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। हर्ड मेंटालिटी आया कि भाई सब मार्केट में जा रहे हैं। रिसेंटली आपने कुछ बाय किया, आपने अभी तो कुछ नहीं बाय किया और फियरिंग आउट इनटू फोमो, ठीक है, और आपने कुछ बाय किया तो उससे आपको पॉजिटिव इफेक्ट आया, अगेन यू आर इनटू फोमो, यार अभी मैं करता हूं तो कुछ रह जाएगा। You ignore the long term trends, you miss out the potential opportunities, you look for confirmation bias। अब आपने कुछ खरीदना है ना तो आप confirmation ढूंढते हो। Please understand, I have a question to all of you. There are 500 plus people sitting over here. आप में से किस किस की पिछली जनरेशन स्टॉक मार्केट में थी? Anyone who's prior, their grandparents, their father, यानी एक जनरेशन दो जनरेशन, फादर ही पिछली जनरेशन स्टॉक मार्केट में थी? नन। No, no. Most of the answer is no. There was one answer, Kinjal, my father. हाँ, तो can I say all of you are a first generation investor? Very few knows, very few, yes, sorry. You are a first generation investor into this financial market? Yes. The way we have generational wealth transfer, उस चीज को संभालने की अकल भी हमें हमारे माँ बाप देकर जाते हैं, ठीक है। तो अब आप पहली जनरेशन हो जो इन बाइसेस से गुजर रहे हो, एंड व्हेन यू विल पास ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स इक्विटी टू योर नेक्स्ट जनरेशन, आप इन बाइसेस से कैसे ओवरकम करते हैं इसका लेसन भी अगली जनरेशन को देकर जा पाओगे। Why I can speak so fearfully on all this, fearless for all this, sorry, is I'm a second generation investor. No, Suryansh, people were investing. There were lot many people. My grandfather invested. My father never did. My grandfather did it. I'm a first generation, second generation investor. There are people who are running this business and this investment from ages. So it's nothing like that. But those who are the first generation, you have to overcome these biases. Your next generation will be smarter. Your third generation will be more smarter than you. So these recency biases जो अभी 2020 के बाद आए हैं, द एग्जाम्पल ऑफ 2020 इज इन 2020 CDSL Central Depository Service India Limited just had 3 crore demat account. From 2020 to 2025 starting, the demat account of CDSL is 12 crore or more. There is a spurt of 8 plus crore demat account. From where it comes with recency bias. सब कर रहे हैं, मैं भी करूंगा। कितने इन्फॉर्म्ड है उस पे मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब कितने टिकेंगे उस पे भी है। फाइन, it's very wonderful, Riddhi, if you're a second generation investor, and obviously you can correlate. When you're a second generation investor, you are able to understand the product very better than the other friends of yours. Fine, that ways it is. चलिए, so loss aversion, हमें ना गेन का उतना खुशी नहीं होता है जितना हमको लॉस का दुख होता है। मतलब 10 रुपए गुम जाए तो दर्द ज्यादा है, 10 रुपए मिले तो उतनी खुशी नहीं है। एंड जैसे ये एक एड है, इसको यूज भी किया जाता है साइकोलॉजिकली। जैसे सिगरेट का ये एड है, देखिए नीचे, यू विल गेन 5 year of life by quitting smoking. No, the impact will be more if they write you will lose 5 year of life by smoking. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपने आसपास एड्स को भी देखेंगे तो वो एड एम्फसाइज करता है लॉस पे। लॉस इज अगेन फेयर ऑफ मिसिंग आउट। आई लूज समथिंग, द पेन ऑफ लूजिंग समथिंग इज वेरी 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 पेनफुल। ओ लूज हो जाएगा, लूज हो जाएगा। फाइन, दैट वेज इट इज।
Fine. So it's very important to understand that loss aversion is a bias which have an emotional impact. And when that's why when mutual funds say that are subject to market risk, there are still people, loads of people, crores of people are still not investing because of lack of financial literacy. Another, because of the aspect that the returns are not guaranteed. There is a chance of happening the loss, and that the fear of loss is more higher in my mind. जो लॉस का हिस्सा है मेरे को इतना डर बैठा देता है कि मैं निवेश करने से डरती हूँ. That is the way. Fine. So please go ahead that losses have a more impact. So I'll give you an example. एक बड़ा एक अच्छा डेनियल कैनमैन की बुक से मैंने एग्जांपल पढ़ा था. टॉसिंग अ कॉइन, अमाउंट में चेंज कर दूं. टॉसिंग अ कॉइन, हेड आया तो आप मुझे 10,000 दीजिएगा, टेल आया तो मैं आपको 10,000 दूंगी. दूसरा, टॉसिंग अ कॉइन, हेड आया तो आई विल गिव यू 100, टेल आया तो यू डोंट हैव टू गिव मी एनीथिंग. 90% of the audience, more than 90% of the audience will opt for 100 because they don't want to lose that 10,000. They'll not focus on gaining 10,000, but they'll more lose on losing 10,000. फाइन. ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है. तो अब आप देखिए कि आपने लॉस अवर्जन की वजह से कितने डिसीजंस अब तक गलत लिए, लेट लिए या कैसे लिए. Fine. You have to share. Anybody who want to quote any example, they can write down the chat box. मैम क्या ये पॉइंट प्रोस्पेक्ट थ्योरी से इंस्पायर है? सो कमल, डेनियल कैनमैन की ही थ्योरी है लॉस अवर्जन. उनका पूरा एक चार्ट है इस पे which says that the behavior of the loss aversion is the pain of losing is more as per the pain of gaining. Fine. Confirmation bias. We said ना FOMO. FOMO का ही पार्ट है confirmation. Confirmation में क्या है? Let's say I said to कमल जी, XYZ का शेयर है, लीजिएगा, बड़ा अच्छा है, मगर होमवर्क कर लीजिएगा. What I said to कमल जी, होमवर्क कर लीजिएगा. फाइन. नाउ अब कमल जी रास्ते से मेट्रो से जा रहे हैं. देखिए मैं दिल्ली से हूं तो मैं मेट्रो का एग्जांपल लेती हूँ. कमल जी ने मेट्रो में 3-4 लोगों को बात करते हुए उसी शेयर के बारे में सुन लिया. फिर वो अपनी ऑफिस की लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं तो लिफ्ट में भी कुछ लोग बात कर रहे थे. कमल जी अपने बॉस के केबिन में गए तो बॉस किसी से बात करते करते, कमल दिस स्टॉक इज मूविंग गुड. अब कमल जी को मैंने होमवर्क करने को बोला था, मगर कमल जी के पास एक न्यूज थी. रास्ते में 4 लोगों से कंफर्मेशन मिली और कमल जी ने उसे खरीद लिया. फाइन. कमल जी ने उसे खरीद लिया. ठीक है. नाउ कंफर्मेशन बायस में ऑप्शन ट्रेडर्स सबसे ज्यादा फंसते हैं. दे गेट सम कंफर्मेशन, दे ट्रेड. Is it mandatory to invest a large amount? No, you can start investing with small amount also. Fine. Depending upon to your pocket, but when it comes to trading, you have to learn and then you have to trade. There's somebody is writing that made losses in the COVID and it was hard to overcome for a while. The very first things जिन्होंने losses कर रखे हैं उनके लिए, I'm stopping this and I'll restart with the confirmation. जिन्होंने losses किए, first you embrace your situation that this is gone. फाइन. वी कांट क्राई ओवर स्पिल मिल्क. गिर गया ना दूध, अब उस पर रो नहीं सकते. तो पहले तो अपनी सिचुएशन को एम्ब्रेस कर लो. जब हम एम्ब्रेस कर लेते हैं ना, तब थोड़ी तसल्ली होती है कि ये चला गया. नाउ व्हाट नेक्स्ट, विल प्लान. सो विल स्पीक ऑन दिस. कंफर्मेशन बायस में कमल जी ने क्या किया? वो शेयर खरीद लिया. फाइन. नाउ अब वो नीचे चला गया क्योंकि कमल जी ने होमवर्क नहीं किया था, सिर्फ न्यूज सुनी थी. ठीक है. वो न्यूज क्या थी? मेरे से सुनी, 4 लोगों से कंफर्मेशन ली, और आपने हो सकता है एक फॉलिंग नाइफ के नीचे एक चीज पड़ी थी, वो खरीद ली. ठीक है. तो आप खुद देखिए कि आपने अपनी लाइफ में कब कब, सिर्फ पैसे नहीं, ये बाइसेस आपकी लाइफ में हर जगह आते हैं. वाइल यू आर बाइंग अ फ्रूट, वेजिटेबल, इवन इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, ये बाइसेस सिर्फ फाइनेंस में नहीं है, ये हर बाइसेस हर जगह है. एंकरिंग इफेक्ट. एंकरिंग, देखो कंफर्मेशन बायस में क्या होता है? हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन हमें 4 जगह से मिलती है, हम उसे खरीद लेते हैं. एंकरिंग डिस्क्राइब सबकॉन्शियसनेस ऑफ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, और उसको हम एंकर करके फिर आगे डिसीजन लेते हैं. जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, लाइक निफ्टी 50 स्टार्टेड बुलिश ऑन अ डे, इवन दो द इंडेक्स इज एग्जॉस्टेड, यू रिमेन बुलिश, क्योंकि सुबह मार्केट बुलिश था. तो आपको, अब ट्रेडर को लग रहा है भाई पूरा दिन मार्केट बुलिश रहेगा, नहीं होता.
अच्छा, अभी हमें लग रहा है कि पिछले 5 सालों से मार्केट बुलिश है, अभी और भी अच्छा रहेगा। हाँ, रहेगा अच्छा, मगर करेक्शंस आएंगी, उसको गोल बेस इन्वेस्टमेंट में करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मोहित शाह भी बायसेस होते हैं कि दिमाग में जो हमारे चीजें होती हैं, उनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बायस। हमारा एक तरीका, सोचने का तरीका कि हम ऐसे क्यों सोचते हैं। बायस का मीनिंग अगर मैं बताऊं, इंक्लिनेशन और प्रिजुडाइज, एक चीज को लेकर हमारे दिमाग में एक प्री कंसीव्ड नोशन। ठीक है जी। अब देखो, इन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, ये कब 300 का है, 1000 काट के 300 का है। अब वो 300 का नहीं है, द एंकरिंग इज द प्राइस इज 1000, नाउ द डिस्काउंट इट इज 300। सो एंकरिंग, वी गेट एंकर्ड, और ऐसा हम शॉपिंग में भी करते हैं। वी शॉप अ लॉट, वी एंकर विद द प्राइस एंड देन वी एंड अप बाइंग। जैसे ब्लैक फ्राइडे सेल होती है तो लोग, पीपल गेट एंकर्ड विद दैट प्राइस। I'll repeat confirmation bias. Fine. I'll repeat confirmation bias. Now, so anchoring. सर होमवर्क करेंगे, अच्छा किसी भी बायस का तोड़ यही है, डू योर होमवर्क, डाटा यूज करिए, टेक्निकली यूज करिए, फंडामेंटली यूज करिए, इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखिए, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखिए, और फिर डिसीजन लीजिए। अगर इतना सब नहीं आता है, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाइए, दैट इज रिक्वायर्ड कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट के पास जाइए। मैंने एक किताब में पढ़ा था, दैट वाज, बुक का नाम भूल रही हूँ, दैट वाज 5.5S। तो पहला था सिलेक्ट। मैंने आज सिलेक्ट किया कि मैं अपनी बायसेस से ओवरकम करने के लिए पढ़ना शुरू करूंगी। स्टार्ट। तो मैम ने मुझे कहा कि सारथी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ईटी वेल्थ पढ़ लीजिए, एनसीएफई की वेबसाइट है, वहां काफी सारा कंटेंट है, उसको देख लीजिए। तो मैं पढ़ूंगी, ये स्टार्ट करूंगी। शेड्यूल, तो मैं दिन का आधा घंटा ये सब पढ़ूंगी और सीखूंगी। तो सिलेक्ट, स्टार्ट, schedule. I'll sit with my friend who's interested in the same kind of subject. Surrounding, so we discuss, we are like-minded people. Stay on, I'll keep on learning. Maybe starting में मुझे कुछ नहीं समझ आए, मगर धीरे धीरे मुझे समझ आना लगेगा। अब मैं ये सब करने लगी हूँ, तो मुझे अब हेल्प की जरूरत है। Then I'll look for mentor, then I'll look for course, then I'll look for doing something. Seek help. So these are 5.5S. I'll again repeat: select, start, schedule, surrounding, stay on, and point is seek help. हाँ, आई एग्री संजीव जी, बट संजीव जी कह रहे हैं कि कभी कभी पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, फोमो ओवर पावर कर देता है। तो मैं आपको एक बात बोलूं, यू माइंड योर माइंड एंड यू कैन माइंड एनीथिंग इन योर लाइफ। मैं आज ही का अपना एग्जाम्पल लूं, तो आज मुझे काफी सारा काम था। तो आई जनरली आई गेट अप एट 4, टुडे व्हेन आई गॉट अप एट 4, आई हैव टेकन अ bath, and immediately by 6 my lunch and my breakfast was cooked by me. I cook by my own, and I left my daughter for the school, and at sharp at 8, after having my breakfast, I started working. So this was my predefined mind which defined it कि भाई आज तो काम करना पड़ेगा, ये सब चीजें करनी है। फाइन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैम पता नहीं क्यों टाइम ऑफ ट्रेडिंग सब नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं। कमल जी अपने डेस्क के आगे लिखिए, लोभ और लाभ में ओ की मात्रा का अंतर होता है। फाइन। और व्हेन यू आर ट्रेडिंग, और पता है इस एसेट क्लास के साथ क्या होता है, द ट्रेडर्स, इफ आई टॉक अबाउट ट्रेडर, व्हेन यू ट्रेड, अब सुनार भी ट्रेडिंग ही करता है, एक रिटेलर भी ट्रेड ही कर रहा है। एक रिटेलर ट्रेड करके एक छोटा सा मार्जिन खाना चाहता है, मगर जब हम एज ए ट्रेडर इस मार्केट में ट्रेड करते हैं ना, तो हमको बहुत सारा चाहिए। आई स्लीप फॉर 7 hours सर, आई स्लीप बाय 10। fine, so I sleep for 10 hours and my sleep is less, so I generally sleep for 7 hours only. Fine. So when it comes to managing your mind, you have to predefine it, why I'm investing or why I'm trading. And if I am trading, there will be jackpots, but every day I'll be having a minimum return. Fine. Last wala is, I'll repeat the 5S: select, start, schedule, सराउंडिंग, स्टे ऑन, और 0.5 बोला इसे उस किताब में, दैट इज सीक हेल्प। दे आर 5.5S: select, start, schedule, stay on,
सराउंडिंग, स्टे ऑन एंड सीक हेल्प, सीक हेल्प, हेल्प लीजिए। दैट्स वंडरफुल, थैंक यू रमेश जी। एंकरिंग इफेक्ट, नाउ दिस इज पिग्मेलियन इफेक्ट। This happens when we are buying something from a financial expert, or we are getting influenced by someone, even influenced by me also. Fine. So let's say I remind someone over here, उनकी एक अच्छी टीचर या अच्छा दोस्त, ठीक है, और मेरे साथ में एक व्यक्ति बैठे हैं जिनको ऐसे देख के लगता है अरे यार ये तो वो खड़ूस वाले टीचर की याद दिलाता है। नाउ यू आर माय टीचर, आप मेरे को कुछ सिखा रहे हैं, क्योंकि आपका मेमोरी मेरे को लेकर अच्छा है ना, डिस्पाइट आई एम डूइंग लेस, यू विल पुट एन एफर्ट बिकॉज यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर। शी रिजेंबल टू दैट टीचर हु यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट। वहीं पे वो बच्चा बहुत शार्प है, मगर वो आपको ना अपने किसी बुरे दोस्त की या चीज की याद दिलाता है, तो वो कुछ भी एफर्ट करता है, आप उतना नहीं करते हो, एंड योर एक्शन टुवर्ड दैट पर्सन इज लेस। तो फिर अब मेरे को लगता है यार मैम बड़ा ध्यान देती है, तो आई पुट मोर एफर्ट। उसको लगता है आप इग्नोर करते हो, तो एफर्ट विल बी लेस। सेम थिंग lot many times with their faces, with people, or outlook, we frame a mindset, and that framing mindset create our actions and our reactions. The bias of the week, डंकिंग कूगर इफेक्ट, और वी कॉल इट एज ओवर कॉन्फिडेंस बायस। जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का एक डायलॉग है, साला अपुनी चिप भगवान है। फाइन, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस की मुझे सब कुछ आता है। तो याद रखिए, बहता पानी ही पीने के लायक होता है, खड़ा पानी तो सड़ान मारता है। तो अक्सर इस चीज से कि मुझे सब कुछ आता है, वी एंड अप मेकिंग लॉसेस। वी आर लाइक खड़ा हुआ एक झाड़ है और कुछ झुकता नहीं, कहते झुके हुए पेड़ ही फल देते। तो लर्निंग इज एन ऑन गोइंग एस्पेक्ट। मैं आज तक सीखती हूँ, इन चीजों को मैं बहुत समय से पढ़ा रही हूँ, पर जब भी पीपीटी बनाती हूँ इन चीजों को दोबारा लाइन बाय लाइन पढ़ती हूँ। अपने ये देखिए, किताब कॉपी पढ़ी है, मेरे नोट्स भी पढ़े हैं जिनको मैं रेफर करती हूँ, मैं अपने सेशन को फ्रेम करती हूँ। प्लेसिबो इफेक्ट, ये भी बड़ा ट्रेडर यूज करते हैं। कौन सा था, खतरों के खिलाड़ी में एक लड़का आया हुआ था, वो कहता है कि जब मैं सुबह नहाकर अपने तौलिए को 5 बार झटकता हूँ तो मेरा दिन अच्छा जाता है। दैट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट। ठीक है, सो डोंट हैव दैट प्लेसिबो इफेक्ट इन योर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, कि इस चीज को करने से अच्छा होगा। अच्छा इन्वेस्टमेंट में या ट्रेडिंग में तब होगा जब आप लर्न करेंगे, आप सीखेंगे, और अगर आपको नहीं आता तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस लेंगे। दैट्स अ प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट पे बड़ी अच्छी बुक भी है, मुझे उन ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा, द बुक इटसेल्फ नेम इज प्लेसिबो। फाइन, सो जिस चीज को सोच लिया वो पॉजिटिव। जैसे अक्सर क्या होता है, कहीं जाओ, किसी के कहने से कुछ ठीक हो गया, नहीं उसने कुछ कहा और हमने पॉजिटिवली उस पर एफर्ट किया तो वो ठीक हुआ। जैसे वो आजकल यूट्यूब पे आता है, तेज पत्ता जलाओ, उस पे लौंग, नहीं तेज पत्ते पे 2 लौंग लगाओ, कुछ लिखो, उस पे पैसे ही पैसे आ जाएंगे। भाई ऐसे पैसे आते ना, हम सब वैसे ही पैसे बना रहे होते। अच्छा किसी के आ भी गए तो हो सकता है उसने तेज पत्ते पे लौंग डलाया, पर पहले एफर्ट भी डाले। ठीक है, ट्राई ना अंडरस्टैंड, ऐसे पैसे नहीं आते हैं। फाइन, थैंक यू महक, थैंक यू। अमितवा, तो पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है कि हम किसी इंसान को देख के सोचते हैं, उससे हमारी कोई ऐसी मेमोरी है, कोई भी चीज ऐसी है पॉजिटिव है, तो डिस्पाइट वो इंसान नेगेटिव भी है, जैसे किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर को देख, यार ये तो बहुत अच्छा है, ही रिमाइंड्स मी माय टीचर, तो हम उसको सुनने लगते हैं, और वो ना प्रोडक्ट प्रमोशन में, या उस चक्कर में हम प्रोडक्ट भी खरीद लेते हैं। दैट्स एन पिग्मेलियन इफेक्ट। फाइन, बहुत ही थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रियली थैंक यू। ठीक है, अब एक लास्ट, नोसिबो इफेक्ट। नोसिबो इफेक्ट में होता है हार्मलेस चीज, जैसे कहते हैं ना कि भाई बिल्ली रास्ता काट जाती है तो चलना नहीं चाहिए। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि एक्चुअली पहले जानवर बड़े हुआ करते थे, तो ये तो भारी जानवर भी होते थे, तो बड़ी और बिल्लियां भी, और बिल्लियां शेरों के साथ ही रहा करती थी, और पहले जंगल हुआ करते थे, आबादी कम थी। तो अगर आपने बिल्ली देखी है उसका मतलब शायद शेर भी कहीं आसपास है। तो इसलिए बात जुड़ी थी कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, तो नोसिबो इफेक्ट होता है कि कई बार हमें हार्मलेस चीजें भी, अब जैसे क्या हुआ, कभी किसी ने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, गोल लंबा था, मगर उसने तो शॉर्ट टर्म में ही निकाल लिया, अब उसे लॉस हो गया क्योंकि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी थी। अब उसके दिमाग में बैठ गया नोसिबो इफेक्ट, भाई मैं तो जब भी म्यूचुअल फंड में डालता हूँ ना, मेरे तो पैसे डूब जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है।
ठीक है, get out of that nocebo effect also, that the harmless thing. It is harmful if you not invest in the success story of our Bharat. मेरा भारत, आपका भारत, हमारा भारत, जिस पर आकर FII भी इन्वेस्ट करते हैं. बट इज फाइट और फ्लाइट एज डन बाय द केवमैन. सो सर, फ्लाइट और फाइट मोड क्या होता है कि भाई देखो, केवमैन था ना, तो जंगली जानवर बहुत हुआ करते थे, तो वो इंस्टेंट फाइट मोड पे ही रहता था कि हमेशा चौकन्ना रहा करता था. ठीक है, सो दैट वेज इट वाज कि इट वाज अ फ्लाइट डे, और या तो लड़ो या मरो, फ्लाइट और फाइट मोड. फाइन, दैट वाज द वे. फाइन, चलिए, विद दिस आई एंड माय सेशन. जो क्वेश्चंस थे मैंने सारे अमूमन आंसर किए हैं, बट स्टिल ओवर टू यू नेहा. कोई सवाल है जो मुझसे छूट गया है तो आई वुड लव टू आंसर. मेरा नाम श्वेता कामा है सर. इट इज SHWETACAMMA. मेरा नाम श्वेता कामा है. व्हाट डू वी शो पॉजिटिव इवन इन द डाउन ट्रेंड? तो ओवर कॉन्फिडेंस बायस हो जाता है तन्वी, कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस है, मार्केट को तो मैं ही चलाऊंगा, मार्केट नेगेटिव है तो क्या है, मेरे दिल में पॉजिटिव है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, बहुत से लोग अक्सर ऐसे शेयर्स को रख के बैठे रहते हैं कि मैंने खरीदा है इसलिए चलेगा. जैसे आईटी बबल बस्ट हुआ था. आईटी बबल बस्ट हुआ था साल 2000 में, लेट ऑफ द 90s में. तो उस समय फोमो में आकर सबने केटन स्टॉक्स खरीदे थे, अच्छे आईटी स्टॉक्स भी थे, मगर फिर मार्केट निकलने का मौका भी देती है, मगर लोग उन शेयर्स को लेके बैठ जाते हैं विद दिस कि यार मैंने लिया है चलेगा. वो एक एस्पेक्ट हो जाता है. सो पता है क्या है, आपके बायसेस को ओवरकम करने का तरीका है पढ़िए, जानकारी रखना शुरू कीजिए. फाइन. आप अगर श्वेता कामा लिखेंगे तो आपको मैं दिख जाऊंगी, एक ही दिखूंगी, SHWETACAMMA. SHWETACAMMA. फाइन. सो कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है? मैं देख रही हूँ, मुझे कुछ दिख तो नहीं रहा है. नेहा, मीनवाइल आप भी देख लीजिए अगर कुछ दिख रहा है तो आपको. Yes, ma'am. Okay, there's a question on. No, already send you the request. We will get the PPT. हाँ, सिद्धार्थ, बिहेवियरल बाइसेस पे ऑनलाइन कोर्सेज मैं नहीं बता पाऊंगी. मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और मैंने येल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी पे कोर्स किया था. अभी करंटली मैं मेरी MA परस्यू कर रही हूँ साइकोलॉजी में, and it's more than 20+ year in the industry for the experience. So I observe people. Fine. Ma'am, is it true that option seller have a better chance? सूर्यांश जी, ऑप्शन सेलर बनने के लिए भी ज्ञान लेना जरूरी है. फाइन. ऐसे ही ऑप्शन सेलर नहीं बना जाता, बहुत सारा रिस्क होता है, तो रिस्क से इश्क करने के लिए रिस्क को समझिए. फाइन. आपको मैंने प्लेटफॉर्म्स दिए, सारथी है और बाकी कोर्सेज भी हैं. NISM खुद भी काफी सारे कोर्सेज ऑफर करता है जिन्हें आप देख सकते हैं. रेगुलर फाइनेंशियल न्यूज को पढ़िए, रेगुलर मार्केट्स को देखिए, समझिए. जैसे मैंने मेरी डॉटर को सिखा रखा है, ये चीज लिस्टेड है या नहीं है. वो 11 साल की है, वो कोई चीज खरीद के लाती है, उसकी कंपनी देखती है, फिर गूगल करती है लिस्टेड है या नहीं है. ठीक है, बी अवेयर, आप जिसे कंज्यूम करते हैं क्या वो निवेश के क्या वो शेयर लिस्टेड भी है या नहीं है. फाइन. सो ओपन योर आईज एंड अंडरस्टैंड. ठीक है. सो कैन यू बट बी रेगुलर? मैम, स्मॉल मीडियम लॉन्ग टर्म में. हाँ. So Amit, you have a question. So very first thing, when it comes to small term goals, when I talk about my small term goal is currently having my emergency fund जो है, मगर मुझे थोड़ा और बढ़ाना है. मीडियम टर्म में I want to buy a car because मेरी कार अब 15 साल पुरानी होने लगी है. हालांकि मेरा मूड नहीं है खरीदने का, मगर अब खरीदनी पड़ेगी. मेरी 14 साल पुरानी कार महज 80,000 किलोमीटर चली है, मगर गाड़ी चाहिए घर पे क्योंकि मेरे घर में बुजुर्ग हैं. लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करें तो मेरी डॉटर की एजुकेशन, उसकी शादी, मेरी रिटायरमेंट. तो फिर हम मोड करते हैं PVR, प्रीव्यू, व्यू एंड रिव्यू. प्रीव्यू व्हेन वी एनालाइज, व्यू व्हेन वी बाय, रिव्यू हमें रिव्यू करना पड़ता है. तो हमको अपने फाइनेंशियल गोल्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है. अगर बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है तो उसको उसी समय इवैल्यूएट करने की जरूरत होती है. इमोशनल physiology, Nilkant Rathore sir, maybe I'm not able to answer you on that. Emotional psychology, emotionally we are like, I am emotional person, but physiology पे मुझे नहीं पता है. ओके. पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है आदित्य, कि किसी इंसान को, जैसे मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्या होता है,
आप किसी चीज को, आप टीचर हैं मान लीजिए, और आप 2 बच्चे आपके पास आए हैं ट्रेन करने के लिए आपने लिए। एक बच्चा आपको आपकी बड़े अच्छे दोस्त की याद दिलाता है, उसकी शक्ल आपके बहुत अच्छे दोस्त से मिलती है, और दूसरा बच्चा एक उस दोस्त की याद दिलाता है जो आपको हमेशा बुली करता था, ए आदित्य, पीटता था। अब क्या है, क्योंकि उनके अभी तक आप उन बच्चों से बात नहीं करी है, क्योंकि वो आपको जिन चीजों की याद दिलाते हैं, अब क्या करोगे, जो बच्चा आपको आपकी अच्छी यादें दिलाता है उसके पास आपका एफर्ट ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ज्यादा होगा, दूसरी की तरफ थोड़ा सा आप खिंचे हुए रहोगे। अब क्या होगा, जिस बच्चे से आप खिंचे हुए रह रहे हो वो कहेगा मैं कुछ भी कर लूं, ये तो ऐसे ही रहता है, तो वो थोड़ा और कम डालेगा। दैट इट प्रूव योर फैक्ट कि इस शक्ल वाले व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। और जो वो दूसरा वाला बच्चा है जो आपको टीचर की याद दिलाता है या फ्रेंड की याद दिलाता है, उसको आप थोड़ा सा दोगे, अच्छा दोगे, वो और एफर्ट करके लाएगा। तो दिस इज इन साइकिल ऑफ पिग्मेलियन इफेक्ट। Sorry to बजट, interrupt. I think because of time constraint, we'll consider only 2 more questions. okay, sometime investor link act of how to sell stock when I run a lot in bull run। भाई महक ऐसा है, मैं स्टॉक्स खरीदती हूँ अगेन 2 प्रोस्पेक्टिव से, एक लॉन्ग टर्म, I buy, my next generation will consume। एक होता है when I buy a share, I fix up a target कि भाई इतना हिट हुआ तो मैं बेच दूंगी, या इतना लॉस हुआ तो मैं बेच दूंगी। So I'll call it as a positional investment which I do। So that how I work in the market। Fine। And sometime investor link act of God as an end result of investment। भाई जब कुछ नहीं होता तो दोष तो देना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, एक लड़की कहती है कि ये भी अच्छा नहीं, ये भी नहीं, उसकी माँ शादी के लिए उसके लिए लड़का देख रही होती है, फिर वो उसे कहती है भाई देख शादी कर ले, अंत में कुछ गलत होगा तो कोई तो ब्लेम करने वाला चाहिए ना। तो उसी तरह क्या होता है, गलती हम खुद करते हैं और फिर हम कहते हैं अरे यार भगवान जी की मर्जी थी। खाए आपने 4 पराठे, फिर आपको गैस एसिडिटी हो गई, इंजेक्शन लगाना है, और फिर कहते हो आप भगवान जी की मर्जी, जीभ की मर्जी थी, आपके दिमाग की मर्जी थी। तो खुद को छुपाने का सबसे अच्छा नजरिया है। फाइन, चलिए। नेहा, कैन वी एंड द सेशन? थैंक यू, आप Yes, सबको ma'am. मुझसे Yes, ma'am. बहुत अच्छा लगा। Yes. फाइन, चलिए, I थैंक think यू। ma'am has answered almost all the questions which has been asked. हाँ, आई And होप I think I should end the webinar here. Thank you so much all for your joining today's webinar. And our special thanks to Shweta ma'am for the insightful session. थैंक यू। So I officially close today's session. And once again, thank you so much all the audience for your presence. All the participants will get certificates in within 3 to 4 days, and the recording of today's session will be available on NISM YouTube channel. So keep connecting with us for the future webinar. And now I request to IT team to close the webinar. Thank you so much, everyone.